भारत का मिशन चंद्रयान-3 इतिहास रचने के लिए निकल गया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान-3 अब सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में पहुंच गया है और इसे चंद्रमा तक पहुंचने में 40 दिन लगेंगे। सफल लॉन्च के बाद इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। चंद्रयान-3 में 3 लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का ये मिशन अगर कामयाब रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ये करने वाला चौथा देश बन जाएगा। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment. Congratulations, India. Chandrayaan-3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan-3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan-3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan-3 for its further journey towards moon. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. I feel very proud that our scientists and our country is doing so good. ISRO is doing better day by day. It was once in a lifetime experience, and I think I will never get to witness something like this again. So I feel very proud of my country and it's developing. It's my first time witnessing it live. I feel absolutely exhilarated and it was an amazing experience. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि चंद्रयान-3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है। ये हर भारतीय के सपनों और आकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरता है। ये अहम उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का नतीजा है। मैं उनकी भावनाओं और प्रतिभा को सलाम करता हूं। निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं। इसरो की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जहां पर कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। आइए सुन लेते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम्स है हिडन रहते हैं उसमें, तो वो सब वी ब्रॉट आउट थ्रू रिव्यूज, टेस्टिंग एक्सेट्रा. Then the third year was all testing. We went on so many tests which was not done last time, and final year was final assembly and preparation. So it was a period of very great reviews, mental agonies, specimens, new equipments were realized, entire design was redone, software re-verified. We brought so many people to review our designs once again, and we did hundreds of tests last 2 years to prove that it is good today to go for launch. So it has been a big journey for the team. I have to congratulate the team sitting here, not me. There is a big team, thousands of people. I think we have to, maybe after this we will introduce them. Yeah, but I think Somanath is being very modest. It is not a failure. I mean, it would not be fair to say it was a failure, because if you go even statistically, most of the countries have not been able to successfully land in the first attempt. So, going by that comparative analysis, we are statistically better off than all the other countries. Our record of landing in the first attempt or in the second attempt, many others have landed successfully or absolutely only in the third or the fourth attempt. Having said that, it was also not a failure, because only last 12 kilometers you had some shortcomings which did not live up to your expectation. Actually, your expectation level was very high. You wanted to accomplish through that mission many things which possibly you could have, kept off for the next mission, which did not happen. So it did not, the agenda envisaged by us could not get accomplished in its totality.
So that was kind of a disappointment. But our lander is there, machine reached there, Orbiter is still good. orbiter is still there. So it's just like that. You board a vehicle or a transport bus. It takes you to the destination. It reaches there, but there is a jhatka in the brake, as you sometimes find in the landing of the aircraft. So it's not a failure, but it fell short of our envisaged agenda, which now they have not only supplemented, and that is with every case. Even if it was successful from our point of view, we would have still learned from it, because even the successful mission gives you a hint about certain pitfalls, which you realize, okay, this went off well, but it should have not been like that. I could have done it this way. So every successive mission is an improvement of the earlier mission. And here you also had certain buffer components brought in, as Somnath ji is saying. I will also request you to look at the tweets of our Honorable Prime Minister Modi ji. He has given tweets on Chandrayaan 1, what brought out, what was accomplishment of Chandrayaan 1. He also brought out tweet on Chandrayaan 2, what was the scientific outcome, the accomplishment of Chandrayaan 2, and also hoped that Chandrayaan 3 will go well. Kindly look at his last 2 days of tweets. He has brought out with very well. Thank you. Primary objective of the mission is to demonstrate a soft landing. But still, I would like to know from you, what were the thought process that went behind the choice of experiments that these instruments do? Why these experiments? No, that is an essential part of any mission. Experiments are different experiments. I mean, you have a suite of experiments to do. Why do you choose these three? See, experiments are chosen based on scientific objectives. objectives. We have a scientific team headed by one of our former chairman who looks at it. And in beginning of Chandrayaan program, there was a scientific goal set. What you want to find out, what is unique that you can find out. चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है और आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुन रहे थे, इसरो के प्रमुख इसमें हैं सोमनाथ, और साथ ही केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इसमें मौजूद हैं। इस उपलब्धि के बारे में बता रहे थे और साथ ही हमारे सहयोगी निहाल किदवई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, आज का दिन बेहद खास है, जो एक मौका जिसका कि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, वो दिन आज आया है। सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हो गया है। करीब 40 दिन बाद चंद्रमा पर उतरने की बात कही जा रही है। क्या हासिल होगा इस मिशन से? आपको क्या जानकारी मिली है वैज्ञानिकों से बातचीत करके? मुझे बताया गया कि आपके साथ कुछ बच्चे भी जुड़े हैं जिनके लिए एक बहुत बड़ा मौका था, उन्होंने अपनी आंखों से देखा इस प्रक्षेपण को। बिल्कुल अखिलेश जी, जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे ही बात कर लेते हैं, फिर हम इसके डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ये सारे बच्चे यहाँ पर बहुत ही उत्सुकता भरी नज़रों से, जैसे कि दुनिया भर के लोग देख रहे थे उस लॉन्च को, इन लोगों ने भी देखा, काफ़ी उत्साहित थे। आप ये बताइए कि कैसा लग रहा था जब ये सब हो रहा था? मुझे तो दिल से अच्छा लगा एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट द होल ISRO as well as my father. I'm really happy for this. आप लोग बताइए। It's my first time in ISRO. It's a proud moment for every Indian. All the best ISRO for the more success. Like it's their everyone's hard work that is making us so proud now. So like I was so delightful to see the launch. और इन लोगों के साथ एक छोटी बच्ची भी है, इसने मुझे ये बताया कि ये बड़े होकर के एक कंपनी की CEO बनना चाहती है और उसने कहा कि ये बहुत उत्साहित है इस लॉन्च को देख करके। Yes, you were telling me something. It was a wonderful moment in my life. That was my first time I saw the rocket like going launched, and I got goosebumps all over my body when they were shouting India, India. Like it was my wonderful moment in my life. मैंने आपको बहुत अच्छा लगा। Thank you. And you tell me about the launch. How did you feel it? It was a very special moment in my life. I've never thought that I will be this proud. I would like to congratulate every single person in ISRO. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। और भी बहुत सारे लोग, देखिए कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति जब कैमरे को बाईं तरफ पैन करेंगे तो देखिए बहुत सारे लोग, 10,000 से ज़्यादा लोग आए थे इसको देखने के लिए। ये जो हैं इनके फादर यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर हैं और ये मुझे बता रही थी कि जब से ये लॉन्च की प्रक्रिया शुरू हुई है पिछले 20-22 दिनों से, तो घर पे बड़ा अजीब सा एक माहौल था। क्या माने आप अपने फादर से मिल नहीं पाती थी? Yeah, like he was very busy, but घर तो घर ही है, काम तो काम ही है। लेकिन आपको बहुत इस पर अच्छा लगा कि चलिए एक देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ठीक है उनसे नहीं मिल पा रहे हैं तो उसका कोई गम नहीं है।
Yeah, it was like I was feeling the same way. तो ये तो बात हुई इन लोगों की जिन्होंने इस लॉन्च को देखा है। जो जानकारी हमें मिली है कि देखिए अब तक सिर्फ चीन, रूस और अमेरिका ये 3 देश ही सॉफ्ट लैंड कर पाए हैं चंद्रमा पे, और इस बार पूरी तैयारी के साथ देश ने इस अभियान को भेजा है वहाँ पे, और इस बार पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार ज़रूर वो सॉफ्ट लैंड कर पाएंगे। अगर वो सॉफ्ट लैंड कर पाते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, दूसरे जो प्लैनेट हैं वहाँ जाने में भी आसानी होगी। तो इसलिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में है सॉफ्ट लैंड करवाना वहाँ पे। चंद्रयान 2 सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था जब वो क्रैश हुआ और वो सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया तकनीकी खामियों की वजह से, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में अगर आप समझें तो तालमेल नहीं बन पा रहा था। इस तकनीकी खराबी को भी, कमी को भी दूर की गई है। ज़्यादा पावरफुल इस बार लैंडर और साथ ही साथ रोवर है, ज़्यादा उसमें ऊर्जा ज़्यादा दिया गया है, ईंधन ज़्यादा रखा गया है, सौर पैनल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अपने आप में अब देखना है कि अभी चूंकि इसको पृथ्वी की कक्षा में इसको स्थापित कर दिया गया, 15 दिनों तक वहाँ रहेगा, 16वें दिन इसको चंद्रमा के रूट पे डाला जाएगा। उसके बाद ये चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में फिर मैन्यूवर होंगे लगभग 15 से 17 दिनों तक, और फिर जब 30 किलोमीटर की दूरी रहेगी जो हमें बताई गई है, कम से कम 30 किलोमीटर की दूरी और ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर की दूरी, तब इस लैंडर को चंद्रमा पर उतारने की कोशिश होगी। और इसके साथ ही देश दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा भारत जो इस तकनीकी क्षमता को हासिल पाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, सॉफ्ट लैंडिंग किसी भी प्लेनेट पे। ये हमें एक बात और अखिलेश जी नहीं भूलनी चाहिए कि दुनिया के कई देश इस फील्ड में आए। रूस ने सबसे पहले लूना में लॉन्च किया था, लेकिन चंद्रमा 1 जो 2008 में लॉन्च हुआ था वो इकलौता ऐसा मिशन था। दुनिया के सारे देश यहाँ पर मिशन अपना लॉन्च करते रहे, इकलौता ऐसा मिशन था जिसने पहली बार ये बताया कि पानी चंद्रमा पर है। और इस बार दक्षिण ध्रुव पे इसीलिए उसको लॉन्च किया जा रहा है कि दक्षिण ध्रुव वो इलाके हैं जहाँ पर बहुत ही पथरीला इलाका भी है। कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे गड्ढे हैं जहाँ सूरज की किरण नहीं पड़ती, तो वहीं पर पानी की संभावना है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर इस बार चंद्रमा मिशन को लैंड करवाया जाए, क्योंकि वहीं पे संभावना है कि पानी भी मिल सकता है, और अगर जीवन के कुछ संकेत मिलते हैं तो वहीं से मिल सकता है। बिल्कुल हाँ, और जैसा आप बता रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर इसको उतारने का प्रयास किया जाएगा, और ये बात भी अपने आप में महत्वपूर्ण है कि अभी तक जितने भी मिशन हुए हैं दक्षिणी ध्रुव की ओर कोई नहीं गया है, तो ये भी पहला एक मिशन होगा जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीहरिकोटा से हमारे सहयोगी निहाल किदवई जो जानकारी दे रहे थे, और वहां पर उन्होंने ये भी बताया कि बड़ी संख्या में बच्चे भी थे, 10,000 से ज़्यादा दर्शक इस ऐतिहासिक मौके पर मौजूद थे, और ये निश्चित तौर पर एक विज्ञान के प्रति जो रुचि है वो पैदा करेगा बच्चों में, आने वाली जनरेशन के लिए। ये बहुत बड़ा कदम इसरो की ओर से इस बार था। वक्त एक ब्रेक का। बात करते हैं पीएम मोदी के फ्रांस दौरे की। पीएम मोदी आज पेरिस में बास्ती डे की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी को गले लगाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने इस दौरान भारतीय सेना के दस्ते की सलामी ली। तीनों सेनाओं के मार्चिंग दस्ते के जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। उनकी एंट्री सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ हुई। परेड में भारतीय वायुसेना के रफाल लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी। बास्ती डे परेड के बाद भारत और फ्रांस के बीच प्रतिनिधि स्तर की बातचीत की जाएगी। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस मौके पर हिंदी में ट्वीट कर कहा कि विश्व इतिहास में एक विशालकाय, भविष्य के लिए निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश, रणनीतिक साझेदार, मित्र। इस साल की 14 जुलाई की परेड के लिए भारत को सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत करते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है।
और पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत अपने सदियों पुराने सांस्कृतिक बोध से प्रेरित होकर हमारी धरती को शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1.4 अरब भारतीय एक मजबूत और भरोसेमंद साथी होने के लिए फ्रांस के हमेशा आभारी रहेंगे। हमारे संबंध और भी गहरे हों। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर 10 दिनों के बाद एनसीपी के मंत्रियों को आखिरकार विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। और बड़ी खबर यह भी है कि अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, उन्हें वित्त मंत्रालय का भार दिया गया है। अजीत पवार को वित्त के साथ साथ प्लानिंग मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। धनंजय मुंडे को कृषि मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही अदिति तटकरे महिला और बाल कल्याण मंत्री होंगी। छगन भुजबल को भी जिम्मेदारी दे दी गई है। उन्हें फूड और सिविल सप्लाईज और ग्राहक संरक्षण इस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। सभी 9 मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। करीब 12 दिन हो गए हैं सुनील, उसके बाद आखिरकार लंबी खींचतान के बाद ये मंत्रालयों का बंटवारा हो गया। और वो वित्त मंत्रालय जिसको लेकर के कि पिछली सरकार में सारा झगड़ा हुआ था, एक बार फिर अजीत पवार को मिल गया है। बिल्कुल अखिलेश, देखिए जो सुनने में आ रहा था कि जो इतनी ज़्यादा जो बैठकें हो रही थी, बातचीत हो रही थी, वो इसीलिए हो रही थी क्योंकि अजीत पवार का साफ तौर पर यह मांगना था कि उन्हें वित्त और प्लानिंग देना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं वित्त और प्लानिंग देवेंद्र फडणवीस के साथ ही रखना चाहती थी। लेकिन आखिरकार चूंकि अब साथ में लिए हैं और साथ में सरकार चलानी है, और लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा त्याग हम जो देख रहे हैं इस पूरे लिस्ट में, तो बीजेपी के जो मंत्री हैं उनके विभागों का ज़्यादातर मंत्रालय जो है वो जो एनसीपी से जो 9 मंत्री आए हैं उनको दिया गया है। और उसमें एक और जो बड़ा विभाग था जो कि सहकार मंत्रालय, वो भी बीजेपी चाहती थी कि उनके पास ही रहे, लेकिन सहकार मंत्रालय भी आखिरकार दिलीप वलसे पाटिल को दे दिया गया है इस पूरे मामले में। कृषि मंत्रालय धनंजय मुंडे को दिया गया है जो कि अजीत पवार के बहुत ही खास हैं। हसन मुश्रीफ को वैद्यकीय शिक्षण दिया गया है और अनिल पाटिल जो हैं वो मदद, पुनर्वसन और आपत्ति जो व्यवस्थापन है वो उन्हें दिया गया है। संजय बंसोड़े को क्रीड़ा व खेल और युवक कल्याण का मंत्रालय दिया गया है। इसमें और भी कई विभाग हैं जिसमें कि हेर फेर किया गया, जैसे मंगल प्रभात लोढ़ा जो है उनके पास पर्यटन था, वो उनसे लेकर के गिरीश महाजन को दे दिया गया। तो एक हम कह सकते हैं कि इंटरनल भी कई विभाग है जो है कि जिनका जो काम कहा जाए या फिर जो भी होगी एडजस्टमेंट होगा उसके तहत बदला गया है। और सबसे बड़ी बात है कि 9 जो मंत्री पद की शपथ ली थी पिछले रविवार को अजीत पवार और बाकी उनके साथियों ने, 10 दिन से रक्षा चल रही थी, आखिर 11 से 12 दिन लग गए, तब जाकर अब मंत्रिवालयों के बंटवारा फैसले का बंटवारा हो पाया है। और अब जाके वो अपने अपने मंत्री जो हैं अपने अपने कैबिनेट में जाएंगे, काम कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बंटवारे में यही देखने को मिली कि जो मंत्रालय पहले ठाकरे सरकार में, महाविकास आघाड़ी सरकार में अजीत पवार के पास था, वित्त और प्लानिंग, और जिसकी वजह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो उस सरकार से बगावत करके या उस शिवसेना से बगावत करके आने के एक बहुत बड़े कारणों में एक वजह वो भी थी कि शिवसेना के विधायकों को फंड वगैरह नहीं मिल रहा था, क्योंकि वित्त मंत्रालय जो है वो अजीत पवार के पास था, वो सिर्फ अपने मंत्रियों को दे रहे थे, तो विधायकों को दे रहे थे। तो वही मंत्रालय अब फिर से एक बार शिंदे फडणवीस सरकार में अजीत पवार के पास चला गया है, और जिसके लिए बहुत विरोध था, खास करके शिवसेना के जो विधायक हैं और मंत्रियों का। लेकिन आखिरकार बीच का रास्ता यही निकाला गया कि फिलहाल वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास ही रहेगा और साथ में प्लानिंग भी दे देगी। हालांकि एक दिन पहले सुनने में आया था कि प्लानिंग शायद बीजेपी के पास ही रहेगा, लेकिन वित्त और प्लानिंग दोनों फिलहाल अजीत पवार कहीं न कहीं उस विभाग को लेने में कामयाब रहे हैं। शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी। वहीं उत्तराखंड में भी 14 से 18 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका है। ऋषिकेश से हमारे सहयोगी मानसी जोशी की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं ऋषिकेश के तपोवन में मौजूद हूँ और उत्तराखंड में पिछले 3-4 दिन से भारी बरसात जो है जारी थी, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि मौसम एकदम साफ है, तेज धूप निकली हुई है और मेरे ठीक पीछे यहाँ पर गंगा नदी बह रही है। गंगा का जलस्तर जो है वो अभी सामान्य है
कोई इसमें ज्यादा उफान नहीं है, गंगा एकदम सामान्य स्तर के साथ बह रही है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर डेंजर जोन, जो सरकार ने यहाँ पर डेंजर जोन जो है बनाया हुआ है, यानी कि यहाँ आना अगर बरसात के समय में वो मना है। लेकिन मेरे पीछे आप देखिए गंगा नदी जो है वो सामान्य स्तर के साथ बह रही है। इसके अलावा IMD ने यानी कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आने वाले 4 दिनों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है, यानी कि 14 से लेकर 18 तारीख तक हाई अलर्ट जारी है उत्तराखंड में। और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं या फिर फ्लड प्रोन एरियाज हैं, वहां पर लोग ना जाएं। इसके अलावा मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि 17 जुलाई को हेवीली रेनफॉल हो सकता है, यानी कि काफी ज्यादा बरसात हो सकती है। सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जितने भी रोड्स जो हैं वो ब्लॉक है उत्तराखंड में, उनको जल्द से जल्द खोल दिया जाए जगह जगह, क्योंकि लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। उत्तरकाशी का अगर आप इलाका देखें वहां पर लैंडस्लाइड्स है, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में लैंडस्लाइड्स है और देवप्रयाग के पास भारी लैंडस्लाइड्स हुई है।